Right. All right, we start today's lecture. Basically, today's lecture is to give ideas about how to use your uh, different tools that you have in your chest now, tool chest, and how to use those tools to make your some significant product level circuit in the hardware. So one of the that is related to maybe alarm clock or a real-time clock that maybe you guys are interested to make. Real-time clock, and for a real-time clock, the most important thing is a crystal. For example, this is a crystal. So you can see the number written on this crystal is 3.3765. I don't know, 3.37 3579545. Now, what this signifies, this number, uh, the quartz crystal play a very important role in electronics these days. No IC, nothing, anything that is clocked will not work without a quartz crystal. If your mobile phone is a real-time clock or anything, it will not work without a quartz crystal. A crystal looks like something like this, or either something like this, uh, or something like this. So what's the use of these crystals? Basically, crystal oscillator. So how was this done? So someone, scientists are often, when they are free, they are doing experimentation with the things around you. So one of those guys that got a quartz crystal, और पता नहीं उसको क्या सूझी, I fail to understand कि क्या उसको सूझी बारह. Anyway, he applied a frequency across this crystal using a signal generator. This is a symbol of a crystal, and this is the frequency, variable frequency signal. So what he observed was one of the most amazing things in for uh, electronics, and that is that this crystal behaves like an RLC circuit: resistance, inductance, and capacitance within one single crystal. Within this crystal, there is everything: resistance, capacitance, and inductance. And when we try to draw a graph of impedance, he found out another very interesting thing, and that is that the graph is something like this. And this over here was called a resonant frequency. And this width was very small. That was otherwise not very easy to achieve. At a certain frequency, the impedance will fall below the normal impedance at other frequencies. And this fall was very sharp. The width of this was very small. Previously, they used to make RLC circuits, uh, 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 and that would look like something like this. So that is a normal RLC circuit. Parallel RLC circuit. Uh,
So this was R when the impedance capacitor effective it comes equal to impedance, and this was normal RLC circuit. Uh, and this width over here is called the quality factor. For a crystal, this was incredibly small. Quality factor was very high. 1/q is the width of this over here is the quality factor, and this was very high. So I don't want to go too much into uh, doubly related details, but what it meant was that normally they would use an oscillator. Oscillator always has some feedback. Only then it oscillates. And in the oscillator, when they used to use this normal RLC circuit in the feedback, and by tuning the capacitors and inductance, for example, they made a 10 kilohertz crystal oscillator, 10 kilohertz oscillator that would sway with temperature from this 10 kilohertz. And when mass production, even with different capacitors and resistors, this value will change quite a lot, plus minus 5%. तो 10 किलो हर्ट्ज में प्लस माइनस 5% जरा देखें तो क्या बन जाता है. So when they have this crystal installed in parallel with this circuit, what happened that it will lock this oscillator. Crystal would lock this oscillator, and if this crystal is also for 10.00000, that's how they show kilohertz. So it has the crystal has many decimal places accuracy. So when you use this 10.00 kilohertz and you lock this, then this became exactly on the multimeter, on the frequency meter, this will lock to 10 kilohertz. And no matter how you change the environment, a slight variation in the resistor, capacitor, inductance would not budge this crystal frequency oscillator output. So it will be exactly 10 kilohertz. And the accuracy was then meant in terms of plus minus 5 or 10 ppm. ppm means parts per million. So defined in simple terms, you can say that after 1 million second, after 1 million seconds, if you use this to drive a second clock, after 1 million seconds, you will have a plus minus 5 second up and down error. After 1 million seconds. After 1 million seconds, you will have a difference of plus minus 5. And that's even very cheap crystal. The very highly accurate crystal would have even better. So there are ways of going even less than 1 ppm accuracy, going into uh, zero point 0.1 parts per million accuracy also. So once this circuit was made, there was a complete revolution in the electronics industry, because then you could have an oscillator which was highly accurate, very highly accurate oscillator, and that could be used in clock circuits. So quartz, that's how a quartz clock, crystal-based clocks came into being. Before this crystal, the timekeeping using mechanical circuits or simple RLC-based circuit was not very simple. So quartz crystal के साथ, so crystal come with very highly accurate to many decimal places accuracy. So how can we use this crystal in a project? How can we use crystal in a project?
Basically, to use this crystal in a project, what you do is you take a crystal oscillator, a square wave crystal oscillator that uses a crystal of 332.768 kilohertz. It's very common crystal in the market. हार्लोड में जाएंगे आपको बड़े आराम से ये वाली crystal मिल जाएगी. Why is this the use of this? Why is this? This is because when this crystal output frequency is given to a D flip-flop as a clock, and it is output is driven into back to this D input Q complement. If you remember, it becomes divided by 2 counter. The half frequency over here becomes half of this. जब ये 0 है तो ये 1 होगा, जब ये 0 पास होता है ये 1 होता है. Every clock cycle you have an inversion over here, and the frequency of this is divided by 2. So this frequency, if this is the crystal, this frequency will be 16.384 kilohertz. अब आप क्या करेंगे? आप इसी को drive this to another D flip flop as a clock. कनेक्ट इसको भी कनेक्ट कर दें उसी फैशन में. इसकी आउटपुट क्या होगी? हाफ ऑफ दिस. तो हाफ ऑफ दिस विल बी 8192 किलो हर्ट्ज. एग्जैक्टली. इस तरह आप करते जाएं. एक और डिवाइड बाय 2, इसको कहते हैं डिवाइड बाय 2 सर्किट. डिवाइड बाय 2, इसको एक और डिवाइड बाय 2 करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगी? 4196. ये डिवाइड बाय 2 करें, फिर आपको क्या मिलेगी? तो 2048. फिर इसको डिवाइड बाय 2 करें तो आपको मिल जाएगी 1024, which is roughly equal to 1 millisecond. Roughly 1 millisecond. Because it is this frequency f is 1024, so t is equal to 1 over f. That comes out to be equal to nearly equal to 1 millisecond. So t is equal to, at this time point, t is equal to 1 over 0.024, which is nearly equal to 1 millisecond. But we further divide this. We get 512. Divide this again. We get 256. Divide this again. We get 128. सर इन सारों की यूनिट किलो हर्ट्ज है. यहाँ तक तो किलो हर्ट्ज थे, यहाँ भी किलो हर्ट्ज है, लेकिन अब मैंने डॉट हर्ट्ज मिटा दिया ना. 3 डेसिमल प्लेसेस इधर चला गया हूँ मैं. ओह सही सही. ठीक है ना. ये अब मैंने हर्ट्ज में आ गया हूँ. ये पॉइंट मैं इधर ले गया हूँ और किलो को मैंने मिटा दिया. तो ये 256 हर्ट्ज आ गया. इसको आगे करेंगे डिवाइड बाय 2. What you will get is 128. Then you will get 164. Then मैं वैसे बता देता हूँ 32. Then 16. Then 8. Then 4. Then 2. Then 1. So this is 1 hertz. And this is very accurate 1 hertz. Exactly 1 second clock. Exactly 1 second clock. अगर आप इसको ऑसिलोस्कोप पे देखें या किसी फ्रीक्वेंसी मीटर से देखें तो यहाँ पर कोई डिले नहीं है. कोई क्लॉक में फ्रीक्वेंसी फर्क नहीं डालता. कोई भी सर्किट हो वो फ्रीक्वेंसी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं करता. उसका मल्टीपल हो सकता है, उसका हाफ हो सकता है, लेकिन इंटीजर मल्टीपल हो सकता है, लेकिन फ्रीक्वेंसी 32.768 अगर यहाँ से आ रही है तो यहाँ पे एग्जैक्टली इसका हाफ होगी.
तो इस तरह से पूरा एंड में वी गेट 1 हर्ट्ज क्लॉक. तो दैट इज हाईली एक्यूरेट 1 सेकंड क्लॉक. तो इसलिए इसको रियल टाइम क्रिस्टल भी कहते हैं, क्योंकि इससे आपको डिवाइड कर करके एनी एनी क्रिस्टल विच इज 2 raised power n फ्रीक्वेंसी, इसको जब n डिवाइड बाय n काउंटर से गुजारेंगे, n का मतलब है कि ये डिवाइड बाय 2 है, ये डिवाइड बाय 4 है, ये डिवाइड बाय 8 है, ये डिवाइड बाय 16. सो n काउंटर से गुजारेंगे, जब आप डिवाइड बाय 3 2 7 6 8 से करेंगे डिवाइड इसको, तो यू विल गेट 1 हर्ट्ज, एग्जैक्टली 1 हर्ट्ज. 2 को डिवाइड करेंगे, 2 बेस पावर n-1 हो जाएगा, फिर n-2 होगा, एंड अल्टीमेटली जब n-n होगा 2 रेस पावर n-n, तो यू विल गेट 1 हर्ट्ज. तो इसमें आपको 16 टाइम्स इसको डिवाइड करना पड़ता है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. After 16 times, you get exact 1 second clock. So this is a circuit here that does that. So you have a, this is a crystal oscillator based oscillator over here. So you energize it plus 5 volt and you get on this output, you get exactly 1 second clock. On these pins over here, you get other multiplication of the clock, like 8192 kilohertz, 16.384 kilohertz, 8 hertz, 16 hertz, 32 hertz. You can get those outputs from here. तो अगर आपने कोई 1 हर्ट्ज पे चलाना है तो यहाँ से ले ले. अगर आपने टेस्टिंग के लिए ज़ाहिर है 1 सेकंड का वेट तो नहीं कर सकते, यू कैन अप्लाई अ हायर फ्रीक्वेंसी फ्रॉम एनी ऑफ दीज इनपुट्स टू टेस्ट योर सर्किट. We is sending one of these circuits to you also in the kit that I described earlier on. इस kit में ये भी circuit होगा. इसमें हमने 2 raised power 20 का क्रिस्टल यूज किया है, 22 का. तो उसको 22 टाइम्स, ये वाले आईसी जो है ये उसको 22 टाइम्स डिवाइड कर रहे हैं टू गेट 1 हर्ट्ज क्लॉक. हमने 32768 वाला नहीं यूज किया, हमने 2 रेस पावर n इज इक्वल टू 2 रेस पावर 22 और 22 स्टेजेस में उसको फिर डिवाइड किया है टू गेट 1 सेकंड क्लॉक. It doesn't increase the accuracy in terms of ppm. ppm stays with this crystal. और क्रिस्टल की ये वाली इतना ड्रिफ्ट होता है क्रिस्टल में कि ये फिर भी यहाँ पे जो आपको 1 मिलियन सेकंड के बाद आपको प्लस माइनस, तो हायर फ्रीक्वेंसी क्रिस्टल यूज करने का कोई इतना ज्यादा फायदा नहीं. तो सर इस सर्किट में डिले कैसे नहीं होता है? डिले तो होता आपने है, अभी डिले तो होगा, जाहिर है ये सारा आउटपुट यहाँ तक आते आते डिले तो होगा, लेकिन फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हो सकती. ये वाली फ्रीक्वेंसी थोड़ी, अगर ये वाली फ्रीक्वेंसी इस तरह से है तो इसकी जो आधी फ्रीक्वेंसी होगी थोड़ा सा डिले के बाद होगी, लेकिन होगी तो पूरी आधी फ्रीक्वेंसी. डिले आ जाएगा लेकिन फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, टाइम पीरियड एग्जैक्टली इसका आधा होगा. ये कहाँ से, ये स्टार्ट कहाँ से होता है, ये डिले आएगा थोड़ा सा, इससे क्या फर्क पड़ता है, इट डजंट मैटर. तो आपको जब 1 सेकंड की क्लॉक मिलती है वो इसके रेफरेंस से थोड़ी डिलेड होगी, लेकिन फ्रीक्वेंसी एग्जैक्टली 1 सेकंड ही होगी. समझ रहे हैं? जी सर. हाँ, तो फ्रीक्वेंसी में कोई फर्क नहीं पड़ता. फ्रीक्वेंसी इज एग्जैक्टली multiple of this. So you can see here, this is 2 clock cycles, this is 1 clock cycle. राइजिंग एज पे ये हाई होता है, अगले राइजिंग एज पे ये लो होता है, अगले राइजिंग एज पे फाइल होता है, जैसा मैंने क्लास में भी पढ़ा था. तो दिस देयर इज अ डिले, ओवरऑल पूरा वेव फॉर्म शिफ्ट हो गया थोड़ा सा, लेकिन टाइम पीरियड वही है. ओके, सो once you have made you have this 1 second clock, how can we use this in a project? Let's see how we can use this in a project.
So in order to use this in a project, you start with 1 hertz clock. So you give it to a counter. Which is 0 to 9 counter. So we call this divided by 10. Divided by 10. इसकी आउटपुट हम लगा देते हैं एक डिस्प्ले को. So here we get 0 to 9 BCD count. 0 से 9 तक जाता है. 0 से 9 0 से 9. इसका जो ओवरफ्लो होगा, ओवरफ्लो, that we call divide by 10. Because this overflow occurs after complete 0 to 9 clock cycles. We give this to another circuit, which is 0 to 5 counter. And the output of this will be divided by 6 compared to this. Divide by 10 this, divide by this. तो इससे कंपेयर करेंगे तो ये किसके बराबर होगी? यहाँ से ये डिवाइड बाय 10 हो रहा है 1 हर्ट्ज, यहाँ से डिवाइड बाय 6 हो रहा है. तो इससे कंपेयर करेंगे तो ये इसके साथ कंपेयर करेंगे तो क्या होगा? सर एक हाफ होगी दूसरे की. नहीं, ये डिवाइड बाय 10 है. दिस इज बीइंग यूज्ड एज अ क्लॉक टू दिस. ये वाला काउंटर जो है 0 से 5 जाता है और इसका ओवरफ्लो जो है ना, कैरी आउट, ये इसका कैरी आउट है. ये कैरी आउट आता है जब ये ओवरफ्लो करता है 0 से 9. ठीक है ना, 0 से 9 जाता है, 9 से फिर जब 0 जाता है तो इसका कैरी आउट 1 होता है. ये इसको क्लॉक करता है. तो बेसिकली हम कहते हैं कि ये वाला कैरी आउट जो है ना, इसकी फ्रीक्वेंसी इससे अगर आप कंपेयर करेंगे तो डिवाइड बाय 10 होगी. क्योंकि ये पल्स कितनी क्लॉक साइकिल के बाद अपीयर होती है? 10 क्लॉक साइकिल के बाद. सिमिलरली इसके 10 क्लॉक साइकिल जो है वो इसको ये वाली क्लॉक पल्स जो है इसके 6 क्लॉक साइकिल के बाद ये कैरी आउट होता है. इसकी आउटपुट हमने इधर लगा दी एक और डिस्प्ले के साथ. जिस तरह आपने किया भी था एक लैब में, मैं तो वही सर्किट रिपीट कर रहा हूं. यहाँ पे आपने एक डिस्प्ले लगा दिया, इसकी आउटपुट आपने पकड़ के एक और डिस्प्ले को लगा दी. आपने देखा था कि ये 59 तक, ये 59 5 से जाता है तो ये दोबारा 0 हो जाता है. तो ये 0 से 5 तक काउंट करता है, ये 0 से 9 तक काउंट करता है. तो इस क्लॉक को मैं क्या कहूंगा? ये वाली जो इसका कैरी आउट है, ये भी तो एक तरह का क्लॉक है. तो इससे कंपेयर करके काफी देर बाद ये सी आउट इसका कैरी आउट आता है. इसका कैरी आउट जो है इसके 10 क्लॉक साइकिल के बाद आता है, ये वाला. तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी इसके कंपेयर करने से? जाहिर है ये डिवाइड बाय 10 है, ये डिवाइड बाय 6 है. तो एक नंबर को पहले आप डिवाइड करें 10 से, फिर डिवाइड करें 6 से, तो टोटल कितनी दफा डिवाइड हो गया है भाई? और क्या हो गया आप लोगों को? अलीम, अलीम जी सर. जाग रहे हैं, सो रहे हैं? सर थोड़ा सा दरमियान में. अच्छा, तला शहजाद आप बताएं. एक नंबर, एक फ्रीक्वेंसी को आप डिवाइड बाय 10 कर रहे हैं, फिर उसको डिवाइड बाय 6 कर रहे हैं, तो क्या मिलेगा आपको? सॉरी, तो उसको हम डिवाइड बाय 10 कर रहे हैं, तो 0.1 हो जाएगी वो. हाँ, हम डिवाइड बाय 6 करेंगे तो एक वो 1 और 60 हो जाएगी ना. सो वही टोटल गेट 60.
हाँ, सो विल हाँ गेट वंस, यानी एक सेक उसका में ये सेकंड 1/60 हो जाएगी। 1/16, तो इसको कहते हैं मिनट्स क्लॉक। हाँ, ये क्लॉक जो है ये मिनट्स क्लॉक है। एग्जैक्टली 60 मिनट्स के बाद ये क्लॉक जो है ना वो यहाँ पे पल्स आएगी। इसके कंपेयर करेंगे ना तो 60 सेकंड के बाद ये एक पल्स आएगी। तो इसको सेकंड्स डिस्प्ले का नाम दे सकते हैं आप। अब यही क्लॉक जो है ना इसी तरह का बिल्कुल यही चीज 9 डिवाइड बाय 9 और डिवाइड बाय 5 का सर्किट आप यूज करते हैं और उसके डिस्प्ले आप एक और बना लेते हैं 4 के साथ। और एक और इधर, तो ये 4 है ये वाला। तो ये मिनट्स, ये भी बिल्कुल यही चीज है। एक इस पे 0 से बीसीडी काउंटर है, 0 से 9 काउंटर है ये, और ये 0 से 5। तो इस डिस्प्ले को हम क्या कहेंगे? क्या कहेंगे इसको? और क्लॉक। मिनट्स क्लॉक। ये मिनट के बाद इंक्रीमेंट हुआ, मिनट के बाद एक पल्स आएगी तो ये इंक्रीमेंट होगा। तो मिनट्स भी ये इत्तेफाक से एक तो ये 0 से डिवाइड बाय 10 काउंटर भी है इसके अंदर, और डिवाइड बाय 5 काउंटर 6 काउंटर भी है इसके अंदर, बिल्कुल जस्ट लाइक दिस। इसकी जो क्लॉक होगी वो क्या होगी? इसकी क्लॉक आउटपुट वो क्या होगी? दिस इज अ फर्दर डिवाइड बाय 60। ये इसका डिवाइड बाय 60 है, इसका फर्दर डिवाइड बाय 60 ये है। तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे आवर क्लॉक। आप लोग पता नहीं क्यों चार सो रहे हैं सारे। आवर क्लॉक 36 सेकंड के बाद यहाँ पे एक टिक आएगी। 3600 सेकंड के बाद ये वाली क्लॉक जो है ना ये इस तरह से टिक करेगी, बाकी ये 0 ही रहेगी। ये भी क्लॉक, ये भी एक वेवफॉर्म ही है। इसका हाई टाइम बड़ा थोड़ा है, लो टाइम बहुत ज्यादा है। हाई टाइम तो एक क्लॉक साइकिल 1 सेकंड का ही होगा, लेकिन ये पूरा टाइम जो है ये 3600 सेकंड्स होंगे। फिर एक पल्स आएगी इसके ऊपर 3600 सेकंड के बाद, फिर एक पल्स आएगी, जो हम कह सकते हैं कि ये जो पल्स आ रही है ये 1 घंटे के बाद आ रही है। So this will be our clock. So this our clock will go to another display, another circuit that displays between 0 and 1 and 12. जो हमने जो है ना वो रखा हुआ है 12 आवर फॉर्मेट रखा हुआ है। तो एक डिस्प्ले है वो 0 से 1 ही जाता है, 0 1 1 2 नहीं 0 1 0 1, और दूसरा 0 से लेकर 12 तक जाएगा। So this will be our clock, and इस तरह से एक घंटे भी आ गए, मिनट्स भी आ गए। अगर आपने इसके डे भी निकालना है तो आप इसको डिवाइड बाय 24 करेंगे तो आपको डे क्लॉक भी मिल जाएगी, जो एक पूरे दिन के बाद एक पल्स आएगी यहाँ पे, पूरे दिन के बाद। इसके अलावा आप ये करते हैं, यू कैन आल्सो डू दिस, कि आप जो है ना 8 हर्ट्ज की क्लॉक भी ले लेते हैं। 8 हर्ट्ज की क्लॉक, इस क्लॉक को क्या करते हैं आप, एक कुछ स्विच लगा देते हैं इस तरह से करके। ये आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, और इसको इसके साथ एंड कर देते हैं। जब ये स्विच दबेगा तो 8 हर्ट्ज की क्लॉक जाएगी। तो ये सेकंड जो है ना 1 सेकंड के बाद बढ़ने के बजाय 1 सेकंड में 8 दफा ये बढ़ेगा। तो आप यू कैन सेट द टाइम, बेसिकली
इसको आप टाइम सेटिंग करने के लिए यूज कर सकते हैं। जब इसको दबाएंगे तो आपकी 1 हर्ट्ज की क्लॉक जो है वो 8 हर्ट्ज की बन जाएगी, मतलब 1 सेकंड में 8 दफा ये काउंट करेगा। दैट विल मेक दिस लुक लाइक द टाइम इज मूविंग वेरी फास्ट। जब आप सेट करते हैं तो पता है ना आपको, जब आप क्लॉक सेट करते हैं तो एक बटन दबाएं तो वो तेजी से टाइम बढ़ना शुरू हो जाता है, देखा है आपने? कोई जवाब नहीं है। उमैर सिर्फ वो ऑप्शन। है? हाँ यस जी सर, यस। सर, देखिए ये ऑप्शन। क्यों? क्या? जी सर, ऑप्शन देखी हुई है ये वही, यानी वो कोई कोई तेजी से चलना शुरू हो जाता है टाइम। हाँ देखी होगी, आई एम श्योर आपने देखी होगी। आप यू आर वन नॉट born yesterday. Everyone who was born in this class especially they were not born yesterday. So हर एक ने टाइम सेट किया होता घड़ी पे। इस बटन को दबाएंगे तो ये क्लॉक जो है वो बजाय इसके कि हर 60 सेकंड के बाद एक पल्स आए, तो 1 सेकंड में 8 पल्सेस आनी शुरू हो जाएंगी, तो मिनट का टाइम चेंज होना शुरू हो जाएगा। तो बेसिकली ये सेटिंग के लिए सेट क्लॉक, ये सेकंड सेट वाला बटन है, ये मिनट सेट वाला बटन है, और इसी तरह से आप एक आवर सेट वाला बटन भी बना लेते हैं यहाँ पे, और इसको इसके साथ एंड कर देते हैं। इससे ये कि आवर के साथ चलेगा। 1 घंटे में एक सेकंड में 8 घंटे ये घड़ी आगे काउंट कर जाएगी। तो दैट इज यूज्ड टू डू द सेटिंग ऑफ द क्लॉक। So it's very interesting circuit. So you can set it, you can do this. If you want to make an alarm clock, you have to then use comparators to set this value with a particular value, so that when these values become equal, ये घंटे पे लगाते हैं, सेकंड पे, मिनट पे लगा लेते हैं, when these value output of these values become equal to the value of the set point, then the output comparator output becomes 1, and that you can give to a logic a buzzer that will start sounding, buzzer on off होना शुरू हो जाता है। अगर आप चाहें तो बजर को भी आप जो है 2 सेकंड की क्लॉक दे देते हैं बजर को, 2 सेकंड की क्लॉक भी मिल जाती है। उससे ये है कि ये बजर है आपका, वो 1 सेकंड के लिए ऑन होगा, ये बजर है, 1 सेकंड के लिए ऑन होता है, ये आपका है अलार्म से आ रही है आउटपुट, व्हेन द टाइम एंड आवर इज इक्वल टू द सेट पॉइंट। तो 2 सेकंड की क्लॉक है, 2 सेकंड ये बजर बजेगा, 2 सेकंड बंद, 2 सेकंड बजेगा, 2 सेकंड बंद रहेगा। ये अगर 1 है, टाइम बराबर हो गया, 2 सेकंड बंद बजेगा, 2 सेकंड बंद रहेगा। और अगर आपने इसको जाहिर है एंड गेट में ये 2 सेकंड की क्लॉक गुजरेगी इस तरह से करके, 2 सेकंड ऑन, 2 सेकंड ऑफ, 2 सेकंड ऑन, 2 सेकंड ऑफ, तो आपको जो है ना वो बड़ा अच्छा बजर का भी टाइम मिल जाता है इस तरह से बजर बजाने के लिए। ऑल यू हैव टू डू इसके किस तरह से क्लॉक 1 हर्ट्ज की क्लॉक के साथ यू कैन प्ले अराउंड टू डू मैनी थिंग्स। 1 हर्ट्ज भी है, 2 हर्ट्ज भी है, 0.5 हर्ट्ज भी है, इवन 1 मिली सेकेंड की भी क्लॉक आपको मिल जाती है, विच इज रफली 1024 सेकेंड। 1000 पूरा नहीं होता, इट्स 1024। So this is one project that you can do using, and it's very easy to very simple to simulate it on Proteus also. बहुत आसान है इसको Proteus पे भी simulate करना। All the counters can be reset also, so that the time starts from 0000. If you want to, you can reset all the counters. So there can be a master reset to reset everything. यूजुअली वैसे सेकंड्स क्लॉक की रीसेट होती है, जिससे सेकंड 00 हो जाते हैं, तो उसको आप दबाएं तो सेकंड 00 हो जाते हैं। वो इसलिए करना पड़ता है कि आफ्टर मंथ और सो फ्यू सेकंड का फर्क पड़ जाता है टाइम में। तो बाय मेकिंग इट इक्वल टू 0, यू सिंपली रीसिंक्रोनाइज विद द टीवी का जो टाइम है उसके साथ आप सिंक्रोनाइज कर जाते हैं।
Other circuit that project that I was going to talk about is uh, that is about number law. एक प्रोजेक्ट आइडिया था एंड दैट वाज अबाउट क्या था वो रॉम बेस्ड जो था, ट्रैफिक लाइट का आइडिया था। वो मैं चाह रहा था कि वो अब मैं दोबारा उस पर लेक्चर ना दूं। अगर आपको ट्रैफिक लाइट इंटरेस्टेड है तो आप अभी जो पिछली क्लास हुई है उसका लेक्चर आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। यू कैन वॉच दैट लेक्चर टू सी के ट्रैफिक लाइट का कैसे प्रोजेक्ट कर सकते हैं आप। So I'll try to do a different project here, and that project is about a number lock, how to make a number lock. So idea of a number lock is that you use this keyboard, this keypad. I've shown this to all the class fellows in the morning lab. This keypad has you press a key, you get a binary output over here, and after 1 millisecond you get also a clock, so that the output of this can be clocked to a register. रजिस्टर पे क्लॉक भी हो सकती है, ये की प्रेस करें तो किसी आउटपुट पे क्लॉक भी हो जाती है। तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग सर्किट, कीपैड विद बाइनरी आउटपुट। यहाँ पे नजर भी आता है, अगर 0 प्रेस करें तो ये सारे 0 होंगे, 0 1 प्रेस करेंगे तो 0 0 1, और अगर आप 9 प्रेस करेंगे 1 0 0 1, स्टार प्रेस करेंगे तो भी उसका भी कुछ है, ए का भी कुछ है, बी का भी कुछ है, और सी और डी का भी है। स्टार और हैश ये दो बच जाते हैं, उनको भी उन्होंने स्टार और हैश असाइन किया है, इनका भी कोई बाइनरी कोड होता है। वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। नाउ हाउ कैन वी मेक अ नंबर लॉक यूजिंग दिस सर्किट? बड़ा आसान सर्किट है आपका। वेरी फर्स्ट थिंग यू नीड इज अ काउंटर। दिस काउंटर acts as the state machine. So this is a 4-bit काउंटर। अगर 4-bit काउंटर है तो आप 16 नंबर का क्लॉक सेट कर सकते हैं। अगर आप 3 नंबर के है तो आप 3 का है तो आप 9 डिजिट का अपना सीक्रेट लॉक सेट कर सकते हैं। 9 से कम, मे बी 7 डिजिट का या 6 डिजिट का आप आराम से एक लॉक सेट कर सकते हैं। ये 3-बिट का काउंटर है। फर्ज करें इस काउंटर के आउटपुट को आप क्या करते हैं, इस काउंटर के आउटपुट को देते हैं आप एक रॉम के अंदर एज एन एड्रेस। यहाँ पर A0, A1, A2। जिन्होंने राम नहीं पढ़ी वो परेशान ना हो, अभी अगली लैब आपकी चूंकि रॉम के ऊपर है तो आपको ये सारा समझ आएगा कि ये क्या हो रहा है। बेसिक आइडिया इज कि यू गिव एन एड्रेस, दिस इज एड्रेस 0000। हायर एड्रेस लाइन जो है वो आपने सारी 0 कर दी, वो मस्ट है 0 करना। तो यू आर बेसिकली स्टोरिंग सम डाटा ऑन दिस फर्स्ट 8 लाइन्स ऑफ दिस ROM, फर्स्ट 8 पोजिशन। So this ROM is 8-bit ROM. uh, 8-bit ROM. So when you give 000, मेमोरी लोकेशन 0 के ऊपर जो 8 बिट का डाटा होगा वो यहाँ पे आ जाए। We have already talked about how to program your ROM. आपने आज देखा भी है लैब में कितने बड़े आसानी से बड़े मजे से ये ROM प्रोग्राम हो जाती है कि किस तरह आप इसको प्रोग्राम करेंगे ये डाटा। अब यहाँ से आपको चारों होनी चाहिए, आप 4 भी काफी हैं, 8 ना यूज करें, आप D0 से लेकर D7 तक यूज करें, डिपेंडिंग ऑन क्या आपने करना है। अब पहली लोकेशन पे आपने कोई नंबर बनाया, फर्ज करें आप चाहते हैं कि 91179 आपका नंबर है कि इस नंबर से लॉक खुल जाए। तो पहली लोकेशन पे आपने बिल्कुल जो फर्स्ट लोकेशन है मेमोरी में 000 लोकेशन जो है एड्रेस है, उसके ऊपर आपने क्या स्टोर किया है, 91001। अब ये आउटपुट किधर जाती है, ये आउटपुट जाती है
एक कंपैरेटर को। जो कंपेयर करेगा 9 को, किसके साथ कंपेयर करेगा 9 को, कोई बताएगा? सोचें जरा, जरा अपना माइंड जगाएं, यहाँ ही आके सारी आपकी क्रिएटिविटी यूज होनी है। तो टेल मी, व्हाट विल इट कंपेयर नंबर 9 विद? किससे कंपेयर करेंगे आप? यू हैव अ कीपैड ओवर हियर। So when you will press a key, it will give a 4-bit output over here. Now, if if user has pressed number 9, then this equal will be same, will become equal to same. So this equal, A equal to B जो है ना वो आपको बताएगा, this is A equal to B, this is X input of this state machine. हमने पढ़ा ना कि X input होती है state machine की, this is X input of this state machine. अगर तो 9 आपकी यहाँ से आउटपुट आ रहा है रोम से, ये इसमें ये डिजिट स्टोर्ड है, अगर 9 आया यहाँ पे और यूजर ने भी 9 प्रेस किया है तो इक्वल हो जाएगा। ये यहाँ इसी से एक क्लॉक भी थोड़ी देर बाद बनेगी। ये क्लॉक जो है वो इस स्टेट मशीन को अगली स्टेट पे ले जाएगी। अगली स्टेट में चूंकि ये क्लॉक थोड़ी देर बाद आती है, उतनी देर में ये कंपैरिजन हो गया होगा। It comes after 1 millisecond, so it gives ample time for this comparator to do the comparison. So this is 4-bit comparator. So if 9 is equal to 9, this will be 1. If now it will go to the next address. On the address 000, you have number 9 stored. On stress 001, you will have 001 stored. Now if the user presses 1, again you will have 1 output. Now, if the user presses wrong number, and this will be X will be 0, you can go to a state called 111, which is alarm state. And when these output come over here, alarm की output को end करेंगे आपको, तो यहाँ से आप alarm लगा दें तो alarm बजना शुरू हो जाए। So by writing your number, दूसरी लोकेशन पे भी आप क्या राइट करेंगे? 010 पे 0001। तीसरी लोकेशन पे आप रोम की क्या राइट करेंगे? 011 पे आप राइट करेंगे 7। अगली लोकेशन पे आप क्या राइट करें? 0100 पे आप क्या राइट करेंगे? 9। और अगली लोकेशन पे 101 पे क्या राइट करेंगे? बिंगो स्टेट। This will be a bingo state 1001. When you reach that bingo state, you need to have this output at the bingo state के लिए आप एक AND गेट लगाएंगे जिसमें ये इन्वर्ट करके दे देंगे ये वाले काउंटर की आउटपुट और 2 सीधी दे देंगे। When this output becomes 1, that means ये जो आपका ये वाला काउंटर है इसकी आउटपुट है 101। That will trigger this output 1 कर देगी। ये आउटपुट जब 1 होगी तो यहाँ पे आप you can use a lock to operate a lock, या कोई और साउंड निकाल सकते हैं आप, या कोई एलईडी ऑन कर सकते हैं कि जो ये शो करे कि लॉक खुल गया। If in future you want to change the number, you can take out the ROM and change the ROM. RAM के अंदर जो डाटा स्टोर्ड होगा, that is your firmware उसको कहते हैं। That number is stored in the firmware. फर्मवेयर वो होती है जो ना हार्डवेयर होती है ना सॉफ्टवेयर होती है।
firmware is something that is part of, not part of hardware and software. इसको कुछ कहते हैं कि ये बड़े अरसे का ऐसे सॉफ्टवेयर जो बड़े अरसे बाद चेंज करनी पड़े, उसको फर्मवेयर कहते हैं। या ऐसी हार्डवेयर जिसको कभी कभी आप विदाउट डूइंग मच डैमेज टू द सर्किट यू कैन चेंज दैट, दैट इज कॉल्ड अ फर्मवेयर। सो दिस नंबर विल बी स्टोर्ड इन द फर्मवेयर इन रोम। कल आपने नंबर चेंज करना है, आप रोम निकालें, उसको प्रोग्राम करके नया नंबर इसमें डाल दें, आपकी स्टेट मशीन वही रहेगी, सब कुछ वही रहेगा, बस लेंथ ऑफ द डिजिट चेंज हो जाएगी। तो ये रोम जो है ना, इसको कोई ना देखे, इसको निकाल के कोई रीड ना करे, as long as that is true, you will not have any problem. So this is how you make a number lock. So basically this will be a state machine. इधर बनाओ, इधर ही बना देता हूं। This will be a state machine which will start from reset. Which will start from reset like that. इसकी reset state में इसकी आउटपुट होगी 9 थ्रू रोम। ये रोम जो है ना, इसको भी आप एक कॉम्बिनेशनल सर्किट ही समझे, ये इसका आउटपुट सर्किट है या इनपुट सर्किट। अगर इधर लगा दूं इनपुट है, अगर इधर लगा दूं आउटपुट, इट डिपेंड्स हाउ यू थिंक अबाउट इट। तो ये 9 आ गया, इसकी आउटपुट होगी 9 और इसकी इनपुट होगी x। अगर यूजर ने प्रिंट किया, प्रेस किया 9, तो क्लॉक भी आएगी और कंपैरेटर की आउटपुट भी 1 हो जाएगी। तो दिस रिप्रेजेंट अ क्लॉक। So we'll go to the next stage 0 0 1। और इसमें अगर फिर उसने अगला डिजिट करेक्टली प्रेस, हमने इनपुट किया, आउटपुट किया यहाँ से 1। अगर यूजर ने भी 1 प्रेस किया है तो कंपैरेटर की आउटपुट हो जाएगी 1 x। एंड वी विल गो टू द सेकंड स्टेज 0 1 0। तो ये बेसिकली 1 1 का सीक्वेंस आपने पकड़ना है। अगर 5 दफा सही यूजर 1 प्रेस कर देता है, ऑल यू आर डिटेक्टिंग इज 1 1 1 1 सीक्वेंस। अगर 1 1 आता जाता है x के ऊपर और ये 0 1 1 पे जाएगी, फिर 0 1 0 पे जाए, 1 0 0 पे जाएगी, और फिर अगर ये 1 0 1 पे चली जाती है तो यू आर इन द बिंगो स्टेट। इन एवरी स्टेट यू हैव आउटपुट which is the lock secret number 1 1। here you will have 7, yeah, here you will have, I don't know what I wrote there, 8 फर्ज करें, number है 9118। so this is the input। anytime if there is a 0 output of this state machine, you go to this state which is alarm state। x is equal to 0, x is equal to 0, x is equal to 0 to go to the alarm state। from here you stay in this alarm state, no matter हो कितनी दफा वो कोई बटन प्रेस करता है, you just stay in this alarm state and only you leave this state when user presses reset of this counter over state machine। So this is full blown project, it's very simple to do। the main part is this state machine बनाना। वो हमने बड़ा किया, डी फ्लिप फ्लॉप से हम काफी आसानी से डी बना सकते हैं। ये बनी बनाई चीज आपको मिल जाती है, आपने एक कंपैरेटर यूज करना है और रोम में आपने डाटा बंद करना है। So you want to make this project as your project, this is very very easy to do। अगर आपको कोई हेल्प चाहिए, आई एम विद यू, हाउ टू बर्न दिस रोम, किस तरह रोम में डाटा डालना है। ये रोम हम आपको भेजेंगे बर्न करके, जब आप हमें बताएंगे कि इसमें क्या डाटा डालना है, we'll burn a ROM and we'll send this ROM to you so that you can use this ROM। ये प्रैक्टिकली आपने करना है, थ्योरेटिकली नहीं करना। तो ये काउंटर भी बना, स्टेट मशीन भी आपने बनानी है डी फ्लिप फ्लॉप के साथ और रजिस्टर के साथ, और ये सारा कुछ करें। फन प्रोजेक्ट, रियली रियली फन, मजे का काम है ये वाला। any confusion, anything that you still think that यहाँ पे आके मैं फंस जाऊंगा, I won't be able to do this project? Anybody, any information, any worrying about anything? Salah Shadad?
कोई सर चीज। इसकी वैसे यूजेबिलिटी क्या होगी? आई वाज जस्ट थिंकिंग दैट कि हम अगर ये बनाता हूँ मैं, हाँ हाँ, चल इसमें काफी सारी चीजें हैं तो काफी इसमें लाइक एंड इट्स आई थिंक इट इज वेरी गुड प्रोजेक्ट। तो लेकिन इसकी यूजेबिलिटी क्या होगी आगे? यूजबिलिटी वेयर इज ये है ना कि दिस, आप वेयर एक दिस कैन छोटा गो? सा डब्बा बना लेते हैं अपने घर में। आपने एक सीक्रेट बॉक्स बनाना है जिसको नंबर बड़ा लंबा सा आप नंबर दे दें, वो नंबर दें तो आपको वो खुलेगा। वो किधर गया बोर्ड, किधर रखा है? यहाँ पे जो था डीएलसी का बोर्ड। हाँ हाँ तो इसमें जो है ना ये एक चीज है, ये देखिए ये मैंने सुबह की क्लास में भी दिखाई थी। दिस इज अ बेसिकली अ लॉक। इसको +5 खोलते हैं ना तो ये जो इसके ऊपर ये चीज लगी हुई है, एक ये बाहर आ जाता है। अगर ग्राउंड देते हैं तो ठीक ये है। अंदर चला जाता है। तो इसको किसी बिल्कुल एग्जैक्टली लाइक ए कुंडी, इलेक्ट्रॉनिक कुंडी आप इसको यूज हाँ करते हैं। तो जब आप जाएंगे ना अपनी सॉरी बिंगो स्टेट में, तो जो 1 होगी वो इसको ऑपरेट करेगी तो लॉक खुल जाएगा। ठीक है। तो ये वाली चीज है, ये आपको हम दे देंगे अगर आपको चाहिए। ये वाली चीज ये देखें, ये बड़ी भी ठीक है। है, ये तो आई आम गेट आदमी तो इसको खोल भी नहीं सकता। ये सीरियस सीरियस स्टफ। तो इट। इसको आप अपने कोई डब्बा बनाया, आपने स्टील का डब्बा बना लिया, नंबर सेफ बनाना है अपना तो आप बना सकते हैं। उसके अंदर ये लगा होगा, जब आप 1 आएगा तो ये गुर्र करती है और ठक करके इसका वो बाहर आ जाता है। अभी ये देखें, पकड़ने जरा। हाँ नॉर्मली ये इस तरह होता है, इससे जब वो ऑपरेट करती है तो ये अंदर चला जाता है। हाँ ठीक है। जब अंदर जाता है तो लॉक खुल जाता है। इस तरह इसका भी यही हाँ सीन है कि नॉर्मली ये इस तरह होता है, जब लॉक खुलता है तो ये ऐसे हो जाता है। हाँ तो ये इस तरह से आप इसके साथ बहुत ही प्रैक्टिकल प्रोडक्ट बना के सस्ता आप मार्केट में बेच सकते हैं। हाँ तो आइडिया यही है डीएलसी में कि हम ऐसी चीजें सोचें जो हम बेसिकली उसमें हम उसको लेकर मार्केट में जाएं और उसको बेच भी सकें, अपना प्रोडक्ट बनाएं। ये बाजार में आप देखें ये सेफ होते हैं, इतने महंगे बिकते हैं। इसका चूंकि सर्किट भी उसके अंदर ही होगा तो जो सेफ खोलेगा वही इसको रॉम को एक्सेस कर सकेगा, वही रॉम को रीप्रोग्राम कर सकेगा। वैसे रॉम को रीप्रोग्राम करने की भी आइडियाज मैं दे सकता हूँ कि कैसे उसको रीप्रोग्राम कर सकते हैं आप। लेकिन मैं अभी सिंपल रखें आप अपने डीएलसी प्रोजेक्ट को। जब भी आपने एक ही सीक्वेंस दिया और उससे आपने इसको खोलना है। बट व्हेन यू वांट टू गो इवन मोर complexity in summer, you can go for even more complex design. So then I can help you on how to go for even more complex design. सर लेकिन इसको हर वक्त कांस्टेंट इलेक्ट्रिक यानी ये तभी चाहिएगा जब इसको वीसीसी मिल रहा होगा। इसको पावर व्हाट मिलनी हैपन? चाहिए। हाँ, हाँ अगर पावर बंद कर दें तो ये लॉक खुल जाएगा? नहीं नहीं, ये लॉक दो तरह के लॉक होते हैं। एक होता है जिसमें पावर बंद करें तो वो लॉक रहता है, जब तक पावर नहीं आती लॉक नहीं खुलता। ठीक है। सो अगर वो हम इस कहते हैं तरह बनाते नॉर्मली लॉक, नॉर्मली लॉक। एक होता है जी जी। नॉर्मली अनलॉक। उसमें ये है कि जब हाँ पावर आएगी तो लॉक होगा, वरना वो लॉक नहीं होगा। हाँ। हम्म। अच्छा सो अगर मैं ये नॉर्मली लॉक वगैरह बनाता हूँ एंड उसको अगर हम बहुत ज़्यादा वोल्टेज दे दें, लाइक डायरेक्ट ये उसको कनेक्ट कर दें बहुत ज़्यादा वोल्टेज से, व्हाट वुड हैपन इन दैट केस? अगर वो बहुत खुल ज्यादा जाएगा वोल्टेज उसकी? देते हैं तो ये जाहिर है स्टेट मशीन और राम के आईसी उड़ जाएंगे। हम्म। और वो नॉर्मली लॉक वाला आईसी जो है, नॉर्मली लॉक वाला सर्किट है, उसकी आउटपुट भी उड़ जाएगी, लेकिन वो ऑपरेट नहीं करेगा लॉक। ठीक है। अच्छा क्योंकि मैं ये सोच रहा था कि लाइक इज देयर अनदर वे अगर कि इसको ओपन करने का, नहीं नहीं, वो जिस ऐसा नहीं हो सकता कभी भी। उसमें ये भी ठीक होता है है। कि इंटरनली एक फ्यूज लगा देते हैं कि अगर कोई ज्यादा वोल्टेज अप्लाई करे तो फ्यूज उड़ जाए। हाँ और फ्यूज जो है ना, चूंकि अंदर है, वो कोई खोल के फ्यूज चेंज कर सकता है, वरना नहीं कर सकता फ्यूज। सही है। और हर जगह हर चीज के जो है ना वो सॉल्यूशंस हैं। हर स्मॉल लिटिल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उसी वक्त ऐसे ऐसे मिलता है। ये तो बहुत ही आसान चीजें होती हैं। हाँ मुश्किल तो ज्यादा चीजें होती हैं वो, जो अब आप कोई इंजन डिजाइन करते हैं जिसके मैकेनिकल कंपोनेंट बनाने हैं आपने। इलेक्ट्रॉनिक्स में हाँ तो सारी चीजें बहुत आसान है, और उनको टेस्ट करना, उनको प्रोटियस में आप इसको मेरा हाल 2 घंटे में आप प्रोटियस में इसको टेस्ट कर सकते हैं।
और बहुत लंबा नहीं टाइम लगेगा बाद में इसको एक्चुअल सर्किट में इंप्लीमेंट करने का। 3 का अगर ग्रुप हो तो ये बड़े आराम से ये काम हो सकता है। Yeah, I think of it. Right, so you can also go for this project if you like. ठीक है, just get a couple of more people to agree on this. Some people may find more this boring and they want to go for a little more exciting project because that's what people usually do. But this is 2-3 लोग काफी हैं इसके लिए। मुझे तो ये भी बड़ा एक्साइटिंग लगता है ये वाला प्रोजेक्ट। तो सर, आज मैंने एक 2 प्रोजेक्ट आज डिस्कस किए हैं, 2 और कर लेंगे कल। एक सुबह वाली क्लास में किया था, एक अब कर दिया प्रोजेक्ट। तो इस तरह से इस वीक में 3-4 प्रोजेक्ट में और आपसे डिस्कस कर लूंगा दैट आर डूएबल राइट फ्रॉम द स्टार्ट टू द एंड। सर, इसमें एक क्वेश्चन था कोई, हाँ जी, ये डायग्राम से कि जो सी रीसेट स्टेट है, अगर इस पे हम लोग गलत इनपुट देते तो यहाँ से भी एक एरो ये 1-1 स्टेट पे नहीं आना चाहिए? नहीं, जब तक वो की प्रेस नहीं करता उस वक्त तक कुछ नहीं होना चाहिए। हाँ, यहाँ से आना चाहिए। अगर यहाँ पे भी कोई गलत इनपुट दे देता है तो x0 है तो तब भी इसको अलार्म स्टेट में चला जाना चाहिए। x इज इक्वल टू दे, तो पहला ही नंबर उसने गलत टाइप कर दिया। वेरी 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 गुड, यू नो, बहुत अच्छा आपने नोट किया है। चलो, एटलीस्ट समवन इज पेइंग गुड अटेंशन टू द डिटेल्स। So if x is 0, it should go into the again it should go to the alarm state. और ये काम करेगा, मतलब ये डीएससी में ये बड़ा इंटरेस्टिंग बात है। अगर आप सर्किट सही बना लें तो ये नहीं हो सकता कि वो चले ना। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसमें कोई ट्यूनिंग नहीं है, कोई आरएलसी सर्किट नहीं है, कोई इसके अंदर आपको किसी चीज को फाइन ट्यून नहीं करना पड़ता। वो एक कैपेसिटेंस बढ़ा दो, नई इंडक्टेंस बढ़ा दो, वो सारे एनालॉग सर्किट्स के कोर्सेज में होता है। इसमें कोई ऐसी चीज नहीं। इसमें यू हैव नो डिस्क्रीट कंपोनेंट, नो इंडक्टर, नो कैपेसिटर, नथिंग। एवरीथिंग इज डिजिटल and even no processor is needed, nothing is required, no microcontroller is needed. All you have done is everything you have studied in your course. State machine पढ़ी है, ROM पढ़ ली, comparator पढ़ लिया, what else you need? So this is a simple application and the sky is the limit. Once you get to know what you can do with what component, then only the sky is the limit. आप ये जो नंबर यहाँ से ले रहे हैं, आप ये भी कर सकते हैं कि इसको कोई मोबाइल फोन से यहाँ पे नंबर दे। वो कैसे देगा कि ये नंबर यहाँ इस कीपैड से ना आए, किसी मोबाइल फोन से आए ये नंबर, ताकि रिमोटली कोई बंदा अगर कोई खास नंबर डायल करे तो ये लॉक खुल जाए, वरना ना खुले। तो वो कैसे कर सकते हैं कि मोबाइल फोन से डायल करें? उसके लिए फिर आपको कल की लैब में आना पड़ेगा। इफ यू वांट टू कम टू द टुमारोज लैब, देन आई विल टेल यू हाउ टू यूज अ मोबाइल फोन रादर देन द कीपैड टू ओपन दिस लॉक। And that's really exciting. कहाँ भी दुनिया बाहर के मुल्क, अमेरिका से आप किसी को कह सकते हैं यार तुम्हारे पास इस लॉक का नंबर है, मेरे घर में जो सेफ है उसका नंबर तुम्हारे पास है, जरा वो नंबर डायल करना ताकि सेफ खुल जाए। मैंने उसमें से ज्वेलरी निकालनी है, अपने मिसेज के लिए ज्वेलरी निकालनी है क्योंकि उन्होंने शादी पे जाना। मैंने ज्यादा ही मुस्तकबिल के मैं बहुत आगे चला गया हूँ, प्लीज डोंट माइंड। तो बहरहाल ये कि ये सीन भी कभी कभी इंशाल्लाह हो सकता है आप लोगों के साथ। तो दिस लॉक कैन बी ऑपरेटेड फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड। वी विल टॉक अबाउट दैट टुमारो। मेरा आज के लिए इतना ही काफी है। लेट्स एंड इट हियर एंड see the other video also that is on how to make a traffic light using ROM and other circuits. And this is a number lock. I personally I like this very much. So anyway, thank you very much and Allah Hafiz.